Good afternoon to all of you. Now, how much we have completed? Ma'am, till question number 9. Question number 11, 12 तक मैम complete. 9 के बाद करवाना है. 9 के बाद 10, 11, 12 I have done. 12 I. How much completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम आज 13 क्वेश्चन नंबर करवाना था. हाँ. मैंने कर लिया. 13 and 14, 15 I have given as homework. Have you completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारा बना लिए. हाँ? No, ma'am. कौन सा? सारा बना लिए. सारा बना लिए? Yes, ma'am. नहीं बनाए. हाँ, किसको डाउट है कोई क्वेश्चन में पूछो. मैम हम बना लिए मैम. पूछ लीजिए मैम. मैम कहीं से भी. नहीं, जिसको मैम वर्कशीट से पूरा बना लिए. अच्छा सुनो, जिसको डाउट है वो पूछो. किसको डाउट है कोई क्वेश्चन में? 13 नंबर. 13 नंबर. ओके. Question number 13. Already I have told what is concentric circle. Here has given two concentric circles and ready. कॉमन सेंटर. हाँ, common center है. Ready of 14 centimeter and 7 centimeter respectively. Two circle दिया है. One radius. See, these are two concentric circle because its center is one. Okay, and radii has given. This is 14 centimeter. Suppose this is capital R and this is small r. This is 7 centimeter. R equal to 7 centimeter. Okay, find the area of the space between them. ये जो देखो, I have shaded this portion. This shaded portion area you have to find out. This much area. Okay. Then first we have to find out the area of the big circle. Okay. Then we have to find out the area of the small circle. Then you will subtract from big circle area and the small circle area. Then we have to find out the space between them. Okay. Now write down area of big circle. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. 22.7 into capital R is 14. 14 into 14. 7 2s are 14. 44 into 14. How much? 616 centimeter square. Okay. Now area of small circle. Now area of small circle is equal to pi small r square is equal to 22 by 7 into this is 7 centimeter. 7 into 7. See 7 and 7 cut. Then 22 into 7 is equal to 154. Okay. Now area of space. Is equal to I have no
space, you can write down area of a big circle minus area of small circle is equal to 616 minus 154 is equal to how much? 416. 462. 52 or 462. 62. 52 नहीं 62 centimeter square. This is your answer. Clear? Ma'am. Write down. Write down everybody. Those who has not done. Ma'am, but this is question number 12. Question number 12. And Okay. this is ma'am. Yes, ma'am. 12. Okay. You have solved Okay, question okay. number 12 and Complete it. At first you do complete, then I will do Yes, question number 12. yes, ma'am, completed. Completed. Shall I rub this? Ma'am, question number 13 बताइए. Huh? Yes, ma'am. Question? Ma'am, question number 13. 13 यही Question तो है. number 13 बता. यही तो है Ma'am, question. ये 12 है. Yes, ma'am, 13 number. Ma'am, ये हम लोग की नंबर है. Ma'am, ये हम लोग की बुक में क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है. अच्छा ये 12 है. ओके ओके, आपका बुक में जो दिया है उसको लिख दो. ये 12 है और 13 में आपका दिया है क्या आयरन वॉशर वाला क्वेश्चन 13. मैम, उसमें सर्कमफ्रेंस वाला दिया. 4 सर्कल इज इक्वल टू बिग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अच्छा वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी. यस मैम. अच्छा वो मेरा बुक में दिया है 14 में. मैम. ओके, shall I rub this one now? यस मैम. ओके. यस मैम. यस मैम. Now question number 12. 12. The sum of circumference of 4 small circle is equal to the circumference of a bigger circle. Find the ratio of the area of the bigger circle to that of smaller circle. This question you are asking? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes See, ma'am. okay, question is given sum of circumference of 4 small square. कोई भी 4 छोटे छोटे सर्कल का स्क्वायर का सर्कमफेरेंस जो है वो किसके साथ सेम हो रहा है? एक बड़ा सा स्क्वायर है उसका सर्कमफेरेंस के साथ सेम है. ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल टू दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल. एट फर्स्ट लेट लीव इट. लेट take the radius of small circle is smaller. Radius of small circle. सारा चीज अभी छोड़ दो. आप सोचो radius of the small circle equal to smaller. What is its circumference? Circumference is equal to 2 pi r. yes 2 pi r. Let radius of big circle. Radius of big circle is equal to capital R. Then its circumference is equal to circumference of big circle is equal to 2 pi r. 2 pi capital R. According to the question, what is given? According to question, sum of circumference of 4 small circles. Okay, 4 into 2 pi r is equal to 2 pi capital R. Understood? ये 4 ठो आप छोटा स्क्वायर का आपका circumference is equal to circumference of the big circle. ये आपका क्वेश्चन में दिया है. अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? यस मैम आ गया. यस मैम आ गया. ओके. द बोर्ड इज विजिबल ना टू ऑल ऑफ यू?
Yes, ma'am. Board is yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see 2 pi कट गया. Then capital R is equal to, इस साइड इसको लिखते हैं, R equal to small 4r. कैपिटल R is equal to small 4r के साथ सेम हो गया. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल डिवाइडेड बाय रेशियो निकालेंगे दोनों का. Ma'am, can you repeat after according to question? According to question, the sum of circumference of 4 small square is equal to the circumference of a bigger circle. Sum of 4, एक का अगर circumference हो गया 2 pi r, 4 सर्कल है उसका circumference कितना होगा? 4 into 2 pi r is equal to, Yes, ma'am. हाँ is equal to, ये किसके साथ सेम है ना? circumference of a big circle, बड़ा सर्कल का circumference के साथ सेम है. अभी क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या दिया था? Yes, ma'am. अब हो गया आपका 2 पाई दोनों साइड में कट हो गया, दोनों साइड में कट इट. देन 4r, यहाँ पे बचा कितना? 4r इक्वल टू कैपिटल R. हम इस साइड लेकर लिख दें कैपिटल R किसके साथ सेम हो रहा है, बराबर हो रहा है 4r के साथ. आफ्टर दैट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बिगर सर्कल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल. अब हम रेशियो निकालेंगे. किसका? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्कल टू स्मॉलर सर्कल. ओके, बिगर सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉलर सर्कल का क्या होगा? पाई स्मॉल 4r स्क्वायर ना होगा. हाँ मैम वो 4r स्क्वायर ना होगा. अभी नहीं, अभी लिखो, उसके बाद R का वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे. पहले इतना लिखो, इसके आगे वाले स्टेप में इसको लिखेंगे. ओके, पहले हम एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना होगा? पाई और कैपिटल R स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका रेडियस अभी कैपिटल R है. और स्मॉलर सर्कल का होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर. ओके, मैम स्मॉलर वाले में 4r नहीं देंगे. अभी नहीं, अभी रुको, अभी नहीं दिया है. 4r देने के लिए कहाँ लिखा है आपको? आपको दिया है नहीं, टू दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल, ऐसा नहीं लिखा है. आप इतना ही लिखो, अभी नहीं लिखा है कि 4 सर्कल के साथ आपको देना है. अब पाई पाई कट गया. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. आई एम नॉट ऑडिबल. नो मैम यू आर ऑडिबल. मैम वो झूठ बोल रहा है, मैम झूठ बोल रहा है. मैम यू आर ऑडिबल. ओके ओके, मैम उसका नाम मैम उत्कर्ष, मैम उसका नाम मैम उत्कर्ष राज है मैम, क्लास 7 F का. अच्छा सुनो, हाँ ठीक है, लीव इट. ओके, साइलेंटली सुनो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बता दो. अब देखो पाई पाई कट गया. R, कैपिटल R की जगह हम 4r लिख सकते हैं. देखो कैपिटल R, रिप्लेसिंग कैपिटल R, वी आर राइटिंग 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. 4r स्क्वायर मींस 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर. नीचे वाले में कितने दिए? हाँ एक्सक्यूज मी मैम. हाँ, मैम नीचे वाले में 16r स्क्वायर कितने दिए? वो भी तो r है ना. ये स्मॉल r है बेटा, ये कैपिटल R है. हमको यहाँ पे मिला कैपिटल R इज इक्वल टू 4r मिला है. देखो, और हम जब यहाँ पे देखो ना, आप अगर कैपिटल R दिया है रेडियस, इसका एरिया क्या होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा. अगर हम रेडियस बोलेंगे कैपिटल R, इसका एरिया क्या होगा? पाई R स्क्वायर होगा कि नहीं? जब हम स्मॉल r लिखेंगे रेडियस, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ? पाई स्मॉल r स्क्वायर. यस और नो? यस मैम. हाँ, तो उसके यस मैम. हाँ, यस मैम. तो हम बिगर सर्कल का रेडियस कितना लिए हैं बेटा? यहाँ पर लिखे हैं बिग सर्कल का रेडियस हम r लिए हैं, इसीलिए हम किसका रेशियो निकाल रहे हैं? देखो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल. स्मॉलर सर्कल का एरिया है, यहाँ पे रुको ना, यहाँ पे कमा देकर लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ताकि आपको
यहाँ पे भी कम्मा देकर आप लिख दीजिए एरिया इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ताकि आपको पता चले इसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई आर और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई स्मॉल आर, एरिया हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। आप देखो ये कैपिटल आर की जगह हम 4R लिख देंगे, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव गॉट कैपिटल आर जो है, जो बड़ा वाला रेडियस है वो 4 गुना होता है छोटा वाला रेडियस का 4 गुना के साथ बराबर होता है। समझ में आया सबको? यस मैम। ओके देखो यस मैम। ये कैपिटल आर की जगह हम 4R लिखेंगे और 4R स्क्वायर, एक मिनट बेटा, 4R स्क्वायर, 4 स्क्वायर आपका 16, R स्क्वायर हो गया 16R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, ऑलरेडी हैव रिटन। अब r स्क्वायर कट गया, अब बचा कितना 16/1 और यू कैन राइट 16:1। ये हो गया आपका आंसर। अब किस मैम वीडियो क्लियर नहीं है आपका। एक मिनट, हम एक बार मोबाइल से उठा तो कर, मैम क्लियर है। मैम आपका वीडियो क्लियर है। हाँ और भी देखो, और भी आपको क्लियरली दिखा रही हूँ। क्लियर ना? नाउ यस मैम। राइट डाउन एवरीबॉडी। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को और कोई प्रॉब्लम है? यस मैम। यस मैम। नाउ यस मैम क्लियर है। अभी क्लियर है। Shall I rub this one? Complete it. यस मैम। सब लिख लिए? यस मैम। यस मैम। Next, अब worksheet 6 completed. We will go to print teacher. यस मैम। Now any other doubt? और कोई डाउट नहीं? Or any doubt in any question of worksheet 6? Yes, ma'am. नो मैम। Which question? नो मैम। Someone is saying yes, ma'am. Which question, beta? Ask me. 14। हाँ, हर क्वेश्चन मैम ही बनाएगी। हैं? मैम 14 नंबर, मैम 14 14 में क्वेश्चन क्या पढ़ो तो? मेरा बुक में तो कुछ अलग दिया है, आप पढ़ लो क्वेश्चन क्या दिया है। मैम समझ में आया। सब एक साथ। Circumference of the circle. नहीं आया मुझे, कोई एक पढ़ो। The area of मैम बना ली, मैम बना ली। area of rectangle with side 112 meter and 8 inches of the अरे ये तो कितना Find the circumference of the circle. ओके। मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 14, क्वेश्चन नंबर 14. In my book it is question number 15. Okay. Area of circle is equal to the area of rectangle. Question में दिया है ना, तो question is given area of circle is equal to area of rectangle. Area of rectangle is given और area of rectangle का sides is given. You can find out the area of rectangle is equal to length and breadth is given. 112 Okay. into 88. 112 into 88. Ma'am, 88. हाँ, is equal to how much? कितना multiply? 9,000.
मीटर स्क्वायर। अब देखो ये सेम है किसके साथ, एरिया ऑफ द सर्कल के साथ ये सेम है। ओके, देन वी कैन से पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9856 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन r square is equal to 9856 divided by 9856 divided by 22/7 into 7 by 22 is equal to how much? 3136. Ma'am, 3136. हाँ, 36 मीटर। ओके, नाउ r is equal to under root 3136 is equal to 56 into 56 मीटर। Ma'am, 7/22. हो गया मैम आंसर। Excuse me, ma'am. नाउ सर्कमफेरेंस दिया निकालने के लिए। हाँ, आस्क मी। Ma'am, 352 meter. हाँ, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r 2 into 22/7 मैम, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। नो मैम ठीक चल रहा है मैम। No, झूठ ma'am, बोल रहा है वो। सही है। Yes, ma'am. मैम वो झूठ बोल रहा है। Ma'am, फ्रीज हो गया वीडियो, पॉज है। 352 मीटर। मैम आंसर। हाँ, सर्कमफेरेंस आपका 352 और आपका रेडियस आ गया 56। Excuse me, ma'am. हाँ, मैम ये आंसर है मैम ये आंसर है। 112 और 88 का भी तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये रूट निकाल सकते हैं ना, तो सीधे उधर से निकाल के कर सकते हैं, वो भी सही होगा ना? हाँ सही होगा। आपको अगर किसी का रूट पता है आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। मैम रूट कब पढ़ना है, कौन से क्लास में? नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस मैम, स्क्वायर रूट मैम 8 में। 8 में, हाँ हाँ 8 में। राइट डाउन एवरीबॉडी। यस मैम। कंप्लीटेड। यस मैम। यस मैम। नो मैम। यस मैम। मैम रब कर दीजिए मैम, रब No, कर दीजिए। ma'am. हो गया मैम, हो गया मैम, रब कर दीजिए। मैम सर कंप्लेंट में क्या लिखी है? हाँ, मैम सर कंप्लेंट ये नीचे वाला लाइन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखी हूँ? मैम समझ में आया। मैम बता दीजिए। सुनो, ये हम लिखे हैं सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 into 22/7 into r इक्वल टू 56। 7 से कट जाएगा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 352 मीटर। मीटर। हाँ मीटर, दिस इज योर आंसर। अब यहाँ से 2 पाई r, यहाँ से इसके नीचे ना आप इसको लिख दो। अगर आपको कंफ्यूजन है इधर लास्ट लाइन में दिखने में तो इसको लिख दो। नाउ क्लियर? मैम एक बार आप वैल्यू बेस का क्वेश्चन नंबर 2 बना सकती हैं? वैल्यू बेस्ड मैम जब हम लोग मीटर नहीं लिखेंगे तो मैम मार्क्स कट जाएगा। नहीं, मीटर आपको यूनिट लिखना पड़ेगा ना बेटा। इसके बाद बीटी दिया है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया है? मैम वैल्यू बेस का मैम वैल्यू बेस्ड। अच्छा सुना, मैम आपका क्वेश्चन अलग है मैम, मेरा क्वेश्चन अलग है वैल्यू बेस्ड का। सुना एक मिनट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मेरे बुक में बिल्कुल नहीं है। कोई मुझे व्हाट्सएप पर ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का फोटो आप खींच कर दे दीजिए। हम अभी ब्रेन टीचर मैम, मेरी yes, बुक में मैम। है,
तो अभी हम ब्रेन टीचर करवा देते हैं, कल हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। एनीवन प्लीज सेंड मी द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओके, मेरे बुक में है नहीं। ओके मैम। ओके, अभी हम ये बीटी का क्वेश्चन मेरे पास है, तो हम बीटी बना देते हैं, कल हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। कोई भी मुझे भेज दीजिएगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नाउ यू राइट डाउन ब्रेन टीचर। See, question number 1. Okay, thank you. See, इतना सारा भेजो कि मैम का मोबाइल ही हैंग कर जाए। हाँ, कोई 2 लोग भेजो, उससे ज्यादा मत भेजो, और सही फोटो भेजिएगा, मतलब जो विजिबल हो सकता है, फोटो शुड बी क्लियर। मैम सब आपका मोबाइल हैंग करवा देगा मैम। अंजलि चुप रहेगा। सुनो, ये सब वीडियो रिकॉर्ड होता है ना, तो आप ये सब बातें मत करो। सी, ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 1, अ पाथ 3.5 मीटर वाइड runs inside along the boundary of a square field. One square field is given. A path is given 3.5 meter wide. Square field, which side is 65 meter. This is A, B, C, D, and this is P, Q, R, S. What is its width? Width दिया है आपका 3.5 मीटर। चारों तरफ से आपका width हो गया 3.5 मीटर पाथ। Okay, already this type of question I have done in worksheet 1 and 2. 3.5 meter. हाँ, worksheet 2. Then find the area of the path. Okay, पहले हम एरिया पाथ निकालेंगे। Then also find the cost of manuring the rest of the field at the rate of ₹9 per square meter. Okay, आप देखो फर्स्ट ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है। हम लोग ये क्वेश्चन नहीं है। आपका बुक में क्या क्वेश्चन है, पढ़ो तो पहला क्वेश्चन। रीड कोई एक पढ़ो। मैम ये क्वेश्चन नहीं है बुक में। नहीं है मैम मीटर पर सर्कल सर्कल हो शंकु हो सर्कमफ्रेंस इज 20 करवा रही है। मैम क्वेश्चन नंबर 2 बता रही है। ये तो है। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका 2? ये क्वेश्चन नंबर की बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। सुनो, ये बीटी वाला पेज भी मेरे पास भेज दीजिएगा, तो हम एक बार मैच कर लेंगे क्वेश्चन कौन सा क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो मैं ड्रा कर चुकी हूँ, पहले 2 लिख लो, उसके बाद फिर 1 बनाएंगे। ओके, अब देखो AB साइड, AB इक्वल टू आपको 65 मीटर है गिवन। एज दिस इज ए स्क्वायर, then all sides are same, then find out area of ABCD is a square is equal to side into side 65 into 65. Okay, how much? 4225 मीटर स्क्वायर। अब हो गया, देखो ABCD स्क्वायर का हम एरिया निकाल दिए। अब हम निकालेंगे किसका?
पी क्यू का लेंथ कितना होगा? हु विल से? ये हो गया आपका 65, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा? हाउ मच? यहाँ से 3.5, इधर से भी 3.5 पे आपका माइनस हो जाएगा, तो 65 माइनस 3.5 प्लस 3.5, 65 माइनस 7, मैम 58 500 रुपए ले लिया। ओके। नाउ यू हम तो सोच रहे थे फ्री में बना के हम तो सोच रहे थे मैम फ्री में बना के जाएंगे। area of PQRS is equal to 58 into 58. Side into side, how much? 3,364 meter square. Okay. Now ये एरिया आप पाथ निकालेंगे. Okay. Then you write down area of path is equal to area of ABCD minus area of PQRS. Area of ABCD is equal to 4,225 minus 3,364 is equal to 861. मैम प्लीज रिपीट। देखो हम एक स्क्वायर था ABCD, एक स्क्वायर का स्क्वायर फील्ड था जिसका साइड दिया है आपको 65 मीटर, ये भी 65। सुनो एवरीबॉडी, म्यूट योरसेल्फ। कहाँ से इतना आवाज आ रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपको एक स्क्वायर फील्ड दिया है ABCD जिसका साइड दिया है 65 मीटर। इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं इज इक्वल टू 4,225। ओके। नाउ आपको क्वेश्चन में दिया है 3.5 वाइड रन्स इनसाइड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड। अब ये जो स्क्वायर फील्ड हम बनाए हैं इसका कितना वाइड इधर छोड़कर 3.5। ओके। देन ये जो स्मॉल स्क्वायर मिला इसका लेंथ कितना होगा? ये बड़ा वाला स्क्वायर, ये साइड था 65, ये छोटा वाला साइड कितना होगा? यहाँ से भी 3.5 कम हो गया, इधर से भी 3.5 कम हो गया। इसका मतलब टोटल कितना कम हो गया? 7 सेंटीमीटर। यू कैन माइनस। देन व्हाट इज दिस? 58 of now we can find out the area of PQRS. PQRS का एरिया हम निकालेंगे 58 into 58 बिकॉज इस साइड मिल गया आपको 58, ये भी 58, 58, 58। ओके। नाउ एरिया पाथ कितना होगा? बड़ा वाला स्क्वायर उसका एरिया ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। सी 4,000 हम यहाँ पे लिखे नहीं है बेटा, स्पेस कम की वजह से। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ओके। 4,225 माइनस 3,364 इज इक्वल टू 861 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम अगर वहाँ पर अगर एक्सटीरियर होता तो प्लस करना होता ना? हाँ क्या पूछ रहे हैं मैम? अगर PQRS अगर उसको अगर बढ़ाना होता तो प्लस करना था। हाँ हाँ प्लस होता ना? हम जैसे पहले फिगर बना दिए थे वो आउटसाइड कर दिए थे, उसमें अगर होता तो इसके साथ ऐड करना पड़ता। यस। तो उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग। मैन्योर करना है, कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग रेस्ट ऑफ द फील्ड कितना दिया है? रेस्ट ऑफ द फील्ड इक्वल टू, ये तो हो गया आपका पाथ हो गया, इसको छोड़कर आपका रेस्ट फील्ड मतलब ये एरिया PQRS, measuring the rest of the field, the rest। देखो रेस्ट फील्ड कितना बचा आपको? जो फर्टिलाइजर, मैनरिंग मतलब आपको कुछ फर्टिलाइज करना है तो आप PQRS, बिकॉज ये वाला तो आपका पाथ हो गया। ओके। जाने आने के लिए ये
और बचा कितना, पी क्यू आर एस का एरिया, पी क्यू आर एस का एरिया कितना है 3364 इनटू कितना रुपीज दिया है 9 रुपीज इक्वल टू हाउ मच 30276 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर। एक आंसर ये भी है आपको दिया है, ये भी निकालने के लिए दिया है, दूसरा ये 30276। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? किसको समझ में नहीं आया तो मैम हम लोग के बुक में जो दिया हुआ है ना मल्टीप्लाई होगा, मैम हम लोग ने 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। अच्छा आप 25 कर दीजिए, ये बुक में 9 दिया है तो इसलिए आप एक बार मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो ये ज्यादा आसान होगा। आप यहाँ 9 के जगह ना सारा भेज दिया है। हाँ ओके, ये 9 की जगह बेटा 25 लिखो और मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है आप खुद लिख लो। ये 25 लिख दो यहाँ पर और मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कितना हो रहा है। ये आप खुद मल्टीप्लाई करके यू राइट डाउन द आंसर हियर। क्वेश्चन का आंसर क्या निकल रहा है 100। ये कहाँ से इतना आवाज आ रहा है बेटा? म्यूट योरसेल्फ, जिसको जो प्रॉब्लम होगा तभी आप अनम्यूट होकर पूछना है। हैं? Why you are making so much noise? क्या आ रहा है हाँ मैम आंसर क्या आ रहा है? आंसर आप मल्टीप्लाई करके खुद बताओ। हम 9 से मल्टीप्लाई किए थे इसलिए आपको 8004 है मैम 84,100। Yes मैम 84,100। 84,100 इतना आ रहा है तो यस मैम। ओके राइट डाउन। मैम एरिया ऑफ पाथ जो 861 है उससे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 25 को? नहीं उससे नहीं करना है बेटा, वो तो एरिया ऑफ पाथ हो गया। आपको उसके बाद क्वेश्चन में दिया है ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड। रेस्ट ऑफ द फील्ड बच गया कितना, देखो आपका ये पाथ निकल गया, ये पूरा स्क्वायर आपका स्क्वायर क्या था, स्क्वायर पाथ था ना, स्क्वायर फील्ड था, स्क्वायर ये पूरा आपका फील्ड हो गया। ये जो लाइन है ये आपका पाथ हो गया, मतलब इसमें आपको चलने फिरने के लिए जगह हो गया। उसको छोड़ देने के बाद बचा कितना, ये वाला जो पर्सन है इसका एरिया, मतलब पी क्यू आर एस का एरिया आपको फाइंड करना है। पी क्यू आर एस का एरिया कितना है 3364। उसके एरिया पास निकालने वाला इसलिए निकालना पड़ा, नहीं तो जरूरी नहीं था निकालना। अच्छा नहीं क्वेश्चन में दिया है ना फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। यस मैम हाँ यस मैम इसलिए निकालना है। अगर हम लोग डायरेक्ट निकालना रहता तब जरूरी नहीं था एरिया ऑफ पाथ क्वेश्चन में जो देता है आपको वो करना पड़ेगा, ये बात है। क्वेश्चन में दिया है आपको फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पाथ, इसीलिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। कंप्लीट है? यस मैम। यस मैम। नाउ shall I write this? यस मैम। Okay. यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बुक में जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज 80 मीटर लेंथ एंड 48 मीटर ब्रेड्थ, 3 रोड each of width 2 meter pass through the field such that 2 roads are parallel to the breadth and third road is parallel to the length.